नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादित बयान दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। महाकुंभ को ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ करके पुकारा है। जी हाँ, मृत्यु कुंभ जो है वो कह रही है महाकुंभ जो इतने लंबे अरसे के बाद आया है, महाकुंभ जहां लोग इतने श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाए जा रहे हैं, उसी महाकुंभ को अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो मृत्यु कुंभ बताती नजर आ रही है। हालिया भगदड़ की घटनाओं का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कर डाला। उन्होंने कहा कि वीआईपी को खास सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन गरीबों को इससे वंचित रखा जा रहा है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल चुका है। वीआईपी लोगों को खास सुविधाएं दी जा रही है। न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि विपक्ष के कई नेता महाकुंभ को लेकर बौखलाए नजर आ रहे हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं और अव्यवस्था और आपको बता दें कि बद इंतजामी के आरोप जो है लगा रही हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो पीठाधीश्वर है, दूसरी तरफ आपको बता दें शंकराचार्य हैं, उनका कहना है कि वहां पर जो इंतजाम है वो चाक चौबंद है। भगदड़ मची जो कि गलत था, लेकिन भगदड़ के पीछे सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, ऐसा कोई पॉइंट निकलकर सामने नहीं आया है। इस बीच अब आपको बता दें कि ममता बनर्जी जो है वो लगातार महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए हैं, मृत्यु कुंभ बताया है, वो कहती नजर आई कि आपको इस तरह के बड़े आयोजन की योजना बनानी चाहिए। भगदड़ की घटना के बाद कितने अयोग्य कुंभ भेजे गए, बिना पोस्टमार्टम के शवों को बंगाल भेज दिया गया। वे कहेंगे कि लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ और कहना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जरा सुनिए। কি খারাপ হয়েছে সেটা আমি জানি না, সেটা বুঝবে পরের ইলেকশনে। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? কত হাজার হাজার, 8 বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের, সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা। এক কাপ লাল চাও 500 থেকে 2000 টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা। আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন মহাকুম্ভের পবিত্র জায়গাটা। সব জায়গায় হাইপ তুলে দিয়েছে। সে একবার হয়েছিল না, গণেশ দুধ খাচ্ছে, সব ওখানে স্নান করো নাহলে পবিত্র হবে না। মৃতদেহের ওপর দিয়ে যারা এই হাইপ তুলছেন আর টাকা কামানোর জন্য ধর্মকে বিক্রি করছেন, তাদের আমি মন থেকে মেনে নিতে পারি না। একটা বড় অনুষ্ঠানের স্ট্যাম্পেড হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে। কি প্ল্যানিং করেছিলেন আপনারা? মহাকুম্ভ শুরু হওয়ার দিন পর্যন্ত কোনো প্ল্যানিং হয়নি। ইভেন এখনো আমি দেখছি আসানসোল থেকে শুরু করে বিহারের লোক এনে ভরছেন, আসানসোলের লোক এনে ভরছেন, বিভিন্ন জায়গার লোক এনে ভরছেন, আর বলছেন চলো সব বিনা পয়সায় করে দেবো, ফ্রিতে ট্রেন দিচ্ছেন। আপনি আগে দেখুন আপনার ক্যাপাসিটি আছে কিনা, কত লোক যেতে পারে, কত লোক একটা ট্রেনে যেতে পারে। আমরা তো ট্রেন ভাড়া করে 100 দিনের কাজে টাকা যখন পাচ্ছিল না, জব কার্ড হোল্ডাররা, গরিব মানুষগুলো টাকা বুক করে, টাকা দিয়ে ট্রেন বুক করা হয়েছিল। করা যায়? আমি রেল মিনিস্টার ছিলাম, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি। আপনারা
টাকা নিয়েও পরে টাকা ফেরত দিয়ে বললেন দেয়া যাবে না। তাহলে ফ্রি ট্রেন কাকে দিচ্ছেন? স্যাফরন, স্যাফরন কালার। এত হাইপ তুলতে গেলেন কেন? এইসব সিরিয়াস প্রোগ্রামে এত হাইপ তুলতে নেই। ফার্স্ট দেখতে হয় ক্যাপাসিটি আছে কিনা, প্ল্যানিংটা ভালো করে করতে হয়। রেলের স্ট্যাম্পিডেও তো অনেক মানুষ মারা গেছে, অনেকে আহত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা খুব সফট লাইনে বলেছি। তার কারণ ইনসিডেন্ট বা অ্যাক্সিডেন্ট যে কোনো জায়গায় ঘটতে পারে, সেটা নিয়ে আমরা নোংরা রাজনীতি করি না। কেএমডিএ কাজ করতে গিয়ে কেএমডিএ 3টে শ্রমিক চামড়াপট্টিতে মানে লেদার হাবের ওখানে মারা গেল, যার জন্য লেদার হাবের কালকে মিটিং করা হয়েছে সিরিয়াস অ্যাকশন নেওয়ার জন্য। তাদের তো দোষ ছিল না। আপনারা কমিশন পাঠাচ্ছেন, চিঠি পাঠাচ্ছেন, আর মহাকুম্ভে এত বড় ঘটনার পরে কটা কমিশন পাঠিয়েছেন, কটা কমিটি পাঠিয়েছেন। এমনকি আমার রাজ্যে যারা ফিরে এসছেন একটা ডেথ সার্টিফিকেটও দেননি, পোস্টমর্টেমও করেননি, ইভেন মেডিকেল কলেজ থেকে কেউ সইও করেনি যেখান থেকে ডেড বডি এসছে। শুধুমাত্র যাকে হ্যান্ড ওভার করেছে তাকে সই করিয়ে দিয়েছে। আমি দেখেছি কাগজটা। তাই আমরা কিন্তু প্রত্যেকে যাতে ডেথ সার্টিফিকেট পায় সেই জন্য এখানে পোস্টমর্টেম করিয়েছি, যাতে তার ফ্যামিলি জানতে পারে যে তার ফ্যামিলির মৃত্যু হয়েছে কোথায় এবং তার পোস্টমর্টেম করা হয়েছে, সে মারা গেছে স্ট্যাম্পিডে। এরপরে তো বলবেন হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে, নিয়ে কম্পেনসেশন তো ঘোষণা করেই খালাস। যদি ডেথ সার্টিফিকেট না থাকে, যদি পোস্টমর্টেম না করেন, তো কোথার থেকে সে দাবি করবে? তার আইনের হাতটাও তো শক্তিশালী করতে হবে। করেননি তো, এইটুকু কাজও করতে পারেননি। আপনাদের মনে নেই আমরা যখন প্রথম ক্ষমতায় আসি আমৃতে একটা ঘটনা হয়েছিল, 110 জনের ওপর আমরা বসে সারা রাতে পোস্টমর্টম করে ছেড়ে দিয়েছিলাম, চাকরি এবং টাকা হাতে হাতে দিয়ে। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि आप देश को बांटने के लिए धर्म बेचते हैं। उन्होंने कहा कि आप देश को बांटने के लिए धर्म बेच रहे हो। हमने यहाँ पोस्टमार्टम किया क्योंकि आपने बिना डेथ सर्टिफिकेट के शव भेज दिए। इन लोगों का मुआवजा कैसे मिलेगा? इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इस तरीके का बयान दिया था। ममता बनर्जी यहाँ नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि ये महाकुंभ नहीं बल्कि ये तो मृत्यु कुंभ बना दिया आपने। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी जब इतनी अव्यवस्था थी, इतनी सारी चीजें जो है खराब थी, ट्रैक पर नहीं था, इसके बारे में आपको पता करना चाहिए था। लेकिन आप तो पीआर में व्यस्त थे, आप तो इन चीजों को दिखाने में व्यस्त कि इतना बड़ा आयोजन हमने कर लिया, जैसे इससे पहले कोई महाकुंभ का आयोजन हुआ ही नहीं करता था। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने जिस तरीके के ये विवादित बयान दिया है महाकुंभ को लेकर, वो पहले महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रही है, फिर कह रही है कि नहीं मैं गंगा माँ का सम्मान भी करती हूँ। तो कहीं ना कहीं जो ये शब्दों का चयन जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा जिस तरीके का किया गया है उससे लोग काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी को अपने शब्दों का सही तरीके से चयन करना चाहिए। इस तरीके से महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन को जो 144 साल बाद जो है लोगों को नसीब हुआ, 144 साल बाद इस आप कह सकते हैं कि अवसर को लेकर सारे अखाड़े के लोग हो, सारे पीठाधीश्वर हो, सारे शंकराचार्य हो, जो भी अगर आप कहेंगे कि जिनसे भी हो पा रहा है वो सभी जा रहे हैं इस महाकुंभ आस्था की डुबकी लगाने के लिए। वहां एक घटना देखने के लिए मिलती है, भगदड़ की घटना देखने के लिए मिलती है, जिसके लिए खुद योगी आदित्यनाथ भी आप कह सकते हैं कि चीजें कह चुके हैं, बयान जारी कर चुके हैं। इसे लेकर खुद जूना अखाड़े के भी जो सदस्य रहे हैं, जो आप कह सकते हैं हेड रहे हैं, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ को जो है सपोर्ट किया था और कहा था कि गलती हुई है, चीजें हुई है, खराब हुई, भगदड़ हुई, लोगों को जान गंवानी पड़ी, जो गलत है। लेकिन इतना बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके पीछे क्या कारण था, भगदड़ किस वजह से हुई, क्या सारी स्थिति उत्पन्न हुई, इन सभी के बारे में जो है जानकारी लेनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए पर्टिकुलरली सरकार को या उनकी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। लेकिन ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताकर सारा कुछ जो है वो सरकार के सिर पे, खासकर योगी आदित्यनाथ सरकार के सिर पे इसका ठिकरा फोड़ रही है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें शंकराचार्यों की, जो कि महाकुंभ गए, वहां पर व्यवस्था देखी, वहां से स्नान करके लौटे हैं, उनका बयान कुछ अलग ही कह रहा है। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी का बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए।
देखो, व्यवस्थाओं में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो भगदड़ हुआ, जो घटना हुई, दुर्घटना हुई, उसका हमें बहुत दुख है। हमें नहीं, समस्त हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को, मानव मात्र को दुख है। जितनी भी जानें गई हैं, जितने भी लोग दिवंगत हुए हैं वहां, उनके प्रति हमारी संवेदना है। वो एक त्रुटि है। वो त्रुटि कैसे हुई, कहां से हुई, प्रशासन के द्वारा हुई, पब्लिक के द्वारा हुई, स्नान करने वालों के द्वारा हुई, बैरिकेडिंग खोलने से हुई, उसके जो कारण हैं उन कारणों का पता लगाया जा रहा है। मालूम पड़ेगा क्या कारण था उसका, लेकिन जो हुआ है वो दुखद है। और उसके उन आत्माओं के प्रति हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें सद्गति प्राप्त हो। गंगा जी में गए हैं तो सद्गति, स्नान करने गए थे, वो स्नान करने गए थे, उन्होंने मृत्यु का वर्ण करने का संकल्प नहीं किया था, लेकिन फिर भी अग्नि पर पैर जानबूझकर पड़े और चाहे धोखे से पड़े। अग्नि का काम है दाहकता, जलाना, उसमें दाहकत्व होता है तो वो जलाता है। इसी तरह से उनके परिवार को जो दुख हो रहा है, जो परिवार वाले उनसे दूर हो गए हैं, संसार सागर को छोड़ करके चले गए हैं और जिनका कहीं कोई नहीं है, उनके दुख के संबंध में तो कोई क्या सहायता कर सकता है, कितनी सहायता कोई नहीं कर सकता है। तो वो दुख का विषय है। इतनी ही त्रुटि वहां हुई है कि भगदड़ में जिन लोगों की जानें गई हैं, वो अच्छा समाचार हम लोगों ने नहीं सुना। गुरुजी, जैसे अभी लोगों की भीड़ वहां बढ़ती जा रही है अभी भी, तो कुंभ का समय कितना? तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि व्यवस्था तो अच्छी थी, व्यवस्था सही थी, ठीक थी, भगदड़ मची, लोगों को जान गंवाना पड़ा, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में जानकारी जो है एकत्रित करनी चाहिए। लोगों की वजह से भगदड़ हो गई और व्यवस्था हुई, क्या हुआ इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन जहां मैंने देखा वहां व्यवस्था जो है ठीक थी। अदानी की बात भी उन्होंने कही कि किस तरीके से कितना सारा जो प्रसाद है वहां बांटा जा रहा था। 1 लाख लोगों को हर दिन जो है प्रसाद बांटने का काम, उन्हें खिलाने का काम किया जा रहा था, जो कि बहुत सराहनीय काम था। उन्होंने कहा कि और भी लोग थे जो इस महाकुंभ में सहभागी बने और उन्होंने भी वहां पर जो लोग रह रहे थे उनके लिए खाना पीना और प्रसाद की व्यवस्था जो है लगातार कर रखी थी। तो एक तरफ अगर आप देखेंगे विपक्ष है, समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी है और कई सारे विपक्ष के नेता, कांग्रेस है, जो लगातार महाकुंभ में कई सारी कमियां निकालने के पीछे पड़ी हुई है, लगातार इसे लेकर बयान दे रही है। शब्दों का चयन जो है इस तरह किया जा रहा है, महाकुंभ जैसी श्रद्धा भावना से आप कह सकते हैं लोग जा रहे हैं, उनका नाम आप कह सकते हैं खराब करने का काम किया जा रहा है। मृत्यु कुंभ कह रही है यहाँ पर महाकुंभ को, तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था को भी इस चीज से ठेस पहुंचती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो है ये भी कहती हैं कि हम गंगा मां का सम्मान करते हैं, लेकिन अव्यवस्था थी और सारी चीजें जो है, जैसा कि आपने बयान सुना भी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, ममता बनर्जी का बयान भी आपने सुना। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।